Hello students, this is the fourth video lecture of chapter 5, the fundamental unit of life, class 9 science. In this video lecture, we are going to talk about cell wall. We are going to talk about cell wall. Okay, so we have already studied something known as cell membrane. Now when we discussed about cell membrane, we studied that cell membrane is the outermost covering of the cell. Cell membrane is the outermost covering of the cell. यानी सेल की जो outermost boundary है, जो सेल के अंदर के कंटेंट्स को सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है, that is the work of cell membrane. Okay, but when I talk about cell wall is present outside the cell membrane, or what was the another name for cell membrane? Please do recall, it was plasma membrane. Okay, so when I say that cell wall is something which is present outside the cell membrane, then how come we can say that cell membrane is the outermost covering? We are saying cell membrane as the outermost covering of the cell because in most of the cell, the main boundary is cell membrane. But there are many cells which are having cell wall. Okay, suppose if we talk about animal cell, there is absence of cell wall. There is absence of cell wall in animal cell. But whether if I talk about plant cell, or else let us take the example of fungi. Okay, these have, even bacteria, these have cell wall. So some cells are having cell walls, otherwise cell membrane is always present. There are exceptions which you would be studying in class, I guess directly in 11th. So there are examples like suppose mycoplasm is an organism. Okay, mycoplasm is an organism which lacks cell membrane. Okay, otherwise all animal cells are having cell membrane. Apart from this, all cells are having cell membrane, but all cells are not having cell wall. Few of the cells are having cell wall. Therefore, instead of cell wall, we are regarding cell membrane as the outermost covering of the cell. Clear? Now this was the basic कि cell wall जो है cell membrane के बाहर होता है. So suppose if I am denoting cell membrane with blue, I should be denoting cell wall with black, and which would be outside the cell membrane. Okay, now this cell wall, as I say, is the part of plant cells. So basically in plant cells, the cell wall present is made up of, or you can say is composed of, cellulose. Okay, so cellulose से बनता है cell wall. In plant cells के पास जो cell wall है, that cell wall is made up of a substance known as cellulose. अब ये cellulose क्या है? तो cellulose को टेक्स्ट बुक में दो कीवर्ड्स हैं. एक है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और दूसरा
स्ट्रेंथ, ये याद रखना है. कभी पूछ लिया कि what do you understand by cellulose or what is cellulose. So first of all, cellulose is what present in the cell wall of plant cells, is a complex substance which results in providing strength to the plant. तो sentence formation आता है. The thing you have to remember here is what is the key word, कि भाई ये complex substance है, क्या है, higher standards में पढ़ाया जाए. But right now what you have to focus is a complex substance from which the cell wall of plant is composed of. Apart from this, provides strength to the plant. Cellulose provides strength to the plant, is a complex substance. Okay. Next. Right now when I am talking about cell wall, in the paragraph given in textbook they are mostly focusing on plant cell. But apart from that, as I said, fungi and bacteria and many other organisms are also having cell wall. But here in this level they are focusing at plant cell only. Okay, so when I talk about plant cell, so when I place the plant cell in a hypertonic solution, okay, before moving to this further, I would highly recommend you to understand the concept of hypertonic, isotonic and hypotonic solution. Still, if you are not clear with this concept, go to video lecture number 3, wherein I have discussed all these 3 terms with examples, with schematic diagrams. Okay, visit that and then come to this so that it would make you easy to understand these concepts. Now when I say hypertonic solution, तो जैसे ही मैंने प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाला, क्या होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, कि अगर सेल के अंदर पानी है तो पानी बाहर देगा. Now since I am talking about what, प्लांट सेल, तो प्लांट सेल के पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, बट ब्लैक कलर के साथ ही में क्या है, सेल वॉल. तो प्लांट सेल के पास सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी है. This cell membrane is attached to the plasma membrane is attached to the cell wall. Okay, so जैसे ही मैंने इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा तो क्या होगा कि सेल loses water. Ultimately, the cell shrinks. Ultimately, the cell shrinks. अब जब ये shrink होता है तो क्या होता है कि सेल वॉल का साइज तो उतना ही रहता है, but the thing is, okay, let me denote the plasma membrane with blue. This is cell wall. Cell wall का साइज जैसा था वैसा है, ठीक है. Assuming that both the sizes are same, the size of cell wall would remain same, but the cell membrane would shrink. Okay, the cell membrane would shrink, and this process of shrinking or moving of plasma membrane away from the cell wall is nothing but plasmolysis. Is known as plasmolysis. Shrinkage हो रहा है, but especially in case of plant cell wherein they are having cell wall, तो shrinkage होगा तो क्या होगा, जैसे अगर मैं एनिमल सेल को रखती तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, ये सपोज न्यूक्लियस है, तो ये यहाँ से ये ऐसा हो जाता. इसके साथ साथ एनिमल सेल में मैं क्या सेल वॉल लगा दूं, कुछ ऐसे हो जाती है ना. अगर तुम हाँ बोल रहे हो तो प्लीज फोकस. एज आई स्टार्टेड दिस
that animal cell are not having cell wall. तो यहाँ तो सेल वॉल की बात ही नहीं बनती. तो फिर क्या कि जब मैं अगर मान लो एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखती हूँ, वो भी वाटर लूज करेगा, श्रिंक होगा, शेप चेंज. बट व्हेन आई टॉक अबाउट प्लांट सेल को अगर मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखती हूँ, वो भी वाटर लूज करेगा, बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो जाएगी. सेल वॉल श्रिंक नहीं होगी, सेल वॉल अपना शेप मेंटेन रखेगी, फिर चाहे एक्सटर्नल कंडीशन चेंज हो या ना हो. क्लियर? सो दिस प्रोसेस ऑफ श्रिंकिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अवे फ्रॉम द सेल वॉल, देखो सेल वॉल से दूर जा रही है, दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस. Okay, now suppose we take another condition wherein I place plant cell in a hypotonic solution. So since अगर हाइपरटोनिक का पता चल गया कि हाइपरटोनिक में श्रिंक हो रहा है, तो ऑब्वियसली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, स्वेलिंग वुड टेक प्लेस, है ना. तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि सेल स्वेल्स. ओके, मान लो इफ आई टेक वेरी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो क्या होगा, या इफ आई इंक्रीज द टाइम मतलब मैंने प्लांट सेल को बहुत ज्यादा देर तक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, व्हाट विल हैपन, द वाटर वुड मूव इनसाइड द सेल. वो तो हाइपोटोनिक में भी हो रहा था ना, लेकिन अगर मैं ज्यादा देर तक रखती हूँ तो वो क्या करेगा, वो प्रोसेस कंटिन्यू रखेगा, ऑस्मोसिस होता रहेगा. आर यू एबल टू रिकॉल द टर्म ऑस्मोसिस? सो वाटर की एंट्री सेल के अंदर होती रहेगी. जितनी ज्यादा देर रखोगे प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा. ये स्वेल होता जाएगा, पर एक कैपेसिटी है, उसके बाद क्या होगा, सेल वुड बर्स्ट. बट अगर मैं प्लांट सेल की बात करती हूँ तो सेल वोंट बर्स्ट. तुम ज्यादा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लो, ज्यादा देर तक रखो, प्लांट सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में स्वेल होके, अगर हम एक्सट्रीम कंडीशंस में जाते हैं, यानी अगर मैं उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ज्यादा देर तक रखती हूँ, या मैं वेरी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लेती हूँ, उसमें अगर मैं प्लांट सेल रखती हूँ तो वो स्वेल तो होगा, बर्स्ट नहीं होगा. एनिमल सेल वुड बर्स्ट. अब ऐसा क्यों? सेल वॉल. सिंपली एनिमल सेल के पास एक चीज नहीं है जो प्लांट सेल के पास है. देखो मेरे पास माँ है, तुम्हारे पास क्या है? सिमिलरली, हाँ मुझे पता है गंदा था, बट यू कैन कोरिलेट कि प्लांट सेल बोलेगा मेरे पास सेल वॉल है ना, जो एनिमल सेल के पास नहीं है. ठीक है, सो व्हेन आई टॉक अबाउट प्लांट सेल के पास क्या है, सेल वॉल है. सेल वॉल क्या करेगी, अगर मान लो कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन में या कभी भी प्लांट सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता, स्वेलिंग होगी, बर्स्टिंग नहीं होगी. एक्सट्रीम कंडीशन में पानी जाता जा रहा है, बर्स्ट नहीं होगा. कैसे बर्स्ट नहीं होगा? तो देखो यूजुअली हम प्लांट सेल को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं रेदर देन सर्क्यूलर. ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्लांट में रेक्टेंगुलर ही मिलेंगे, कुछ इलॉन्गेटेड होते हैं, अलग अलग शेप मिलते हैं, बट ज्यादातर एट दिस लेवल प्लांट सेल को इस तरह से डिनोट किया जाता है. ब्लू से मैं क्या बना रही हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, सेल वॉल. तो इसके पास भाई सेल वॉल है. अब क्या होगा, जैसे ही मैंने इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो क्या होगा, ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन. चलो भाई पानी जाता जा रहा है, तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है. जब स्वेलिंग होता है
ये फूल रहा है मतलब धक्का दे रहा है। ये जो है ये सेल वॉल पे धक्का दे रहा है कि बाहर खिसक, मुझे पानी अंदर लेना है, इसे धक्का दे रहा है ना। अब अगर पानी जाता जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है ना। सो अमाउंट ऑफ water entering the cell increases. Amount of water entering the cell increases. Pressure by plasma membrane. प्राइम मिनिस्टर ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। प्रेशर बाय plasma membrane on cell wall increases. तो क्या लगता है कि प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो पॉसिबिलिटी है सेल वॉल वुड बर्स्ट, बट दिस डजंट हैपन, है ना। व्हाई? बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सेम या कह सकते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स is applied by cell wall on plasma membrane. तो मान लो कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ धक्का दे रही है तो ये जो सेल वॉल है ये उसको उतना ही फोर्स अंदर की तरफ लगाएगा। ऑपोजिट हो गया डायरेक्शन, सेल मेम्ब्रेन का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, फोर्स का डायरेक्शन या प्रेशर का डायरेक्शन, और सेल वॉल का प्रेशर का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ऑपोजिट। दूसरा इक्वल, यानी अगर मान लो सेल वॉल जो है वो 10 न्यूटन फोर्स या कह सकते हो 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर का प्रेशर बाहर लगा रही है तो उतना ही प्रेशर सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगा रहा है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वही बात हो गई ना कि जैसे मैंने मान लो ये ब्लॉक ले लिया, मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। बॉक्स कहाँ मूव करेगा, राइट की लेफ्ट? तो मैम कैसी बातें कर रहे हो, दोनों साइड से सेम तरह का फोर्स लग रहा है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बॉक्स वही का वही रहेगा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, सेल बर्स्ट होगा नहीं, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। गेटिंग? तो दिस वाज ऑल अबाउट सेल वॉल। इसमें याद क्या रखना है, देखो क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है दैट इज अबाउट कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में ही मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता है, ये पता होना चाहिए। दूसरा, सेल वॉल का कंपोजिशन प्लांट सेल में क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज सेल्यूलोज? इट्स अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस which provides strength to the plant and is composed, okay, this cell wall of plant cell is composed of cellulose. तो ऐसे सेल्यूलोज का बारे में पता होना चाहिए। दूसरा पता होना चाहिए कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। तो जब हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं प्लांट सेल को तो प्लाज्मोलाइसिस होता है। दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल। उसके अलावा कि जब मैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लांट सेल को रखती हूँ तो वो बर्स्ट नहीं होता, जबकि वही अगर मैं ज्यादा देर तक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में एनिमल सेल को रखती हूँ तो वो बर्स्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लांट सेल के पास है माँ। कौन सी माँ? सेल वॉल, है ना। उसके पास सेल वॉल है जो उसे बर्स्ट होने से बचाती है। कैसे बचाती है? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाइड बाय सेल वॉल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा कि भाई प्लांट सेल को मैंने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा, वो बर्स्ट नहीं हुआ, एनिमल सेल हो गया,
क्यों? तो सिर्फ ऐसा मत लिखना कि इसके पास सेल वॉल है इसलिए। सेल वॉल कर क्या रहा है ऐसा जिसकी वजह से प्लांट सेल बर्स्ट नहीं हो पा रहा, दिस रीजन यू नीड टू मेंशन। बस इतना सा ही था सेल वॉल, है ना, इजी। Okay, if you are having any doubts regarding this, you can ask in comment box. I have already shared mail, okay, in the description. You can also mail me and ask your queries.